So let us see. So next we will see what? Energy stored in the capacitor. Energy stored in a capacitor. आपको पता है कैपेसिटर का काम क्या होता है? It can store charge and can store electrical potential energy, right? Inside the electric field in between plates of the capacitor. वो हमने ऑलरेडी देख रखा है ना. तो अभी देखते हैं हम लोग इसको कैसे कहेंगे. It is equivalent to, it is work done in charging a capacitor, okay, which gets stored in form of electrical potential energy inside electric field between plates of capacitor. ठीक है. So this is how you can define it, है ना. So now let us see the expression. Okay, so since you work done, you know dW will be given as what? It will like V into dQ, right? क्योंकि आपको पता है this relation. ठीक है. तो डिफरेंशियल फॉर्म ऐसे लिख लो, है ना. Now dQ can be written as recall Q is equal to what? Q is equal to CV, right? So dQ since C constant होता है ना, so this becomes what? CdV. So dW becomes V into CdV. इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग. So W would be equal to what? This is C which is constant and V dV. पोटेंशियल को हम 0 to V चार्ज कर लेते हैं. So W is equal to what? C constant है, बाहर आ जाएगा. This is V square upon 2, right? तो हाफ बाहर आ जाएगा and V square. So this is the expression for this work done and this is equal to what? Potential energy, right? Electrical potential energy. So this is one of the expressions and if you use this expression, ठीक है, तो यहाँ सभी expressions आ जाएंगे आपके. Okay, so see, now use this Q is equal to CV. तो इसके और क्या फॉर्म हो जाएंगे? So U would be equal to what? Half CV square. ये जो CV square है, this can be written as half CV into V, half CV square, right? Equal to half CV is what? CV is Q. So this becomes what? Half Q into V, right? And again you can write CV as Q upon C from here, right? So Q into Q upon C, that is Q square upon 2C. तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि for this potential energy we got three expressions. Half CV square, then we got half QV, and then we got half Q square upon C, right? Q square upon 2C. तो ये तीनों ही expressions they are important, ठीक है. So they are all electrical potential energy, है, that is energy stored inside a capacitor. So write it down. So next is what? See, let us see energy stored in case of a series combination of resistors. Okay, so we know what? In case of a series combination, the charge on all the capacitors is what? Constant. It's not resistors, capacitor, right? So on all the capacitor charge is same, right? So charge is constant. So in that case, the total energy would be equal to what? U1 plus U2 plus U3, like this, right? जितने सारे कैपेसिटर्स होंगे सीरीज में, सबका अपना अपना पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग स्केलर सम कर देंगे, बिकॉज एनर्जी जो व्हाट इज इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, राइट. तो U1 क्या हो जाएगा? सिंस Q इज कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन 2C1. यहाँ क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन 2C2. ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C3 एंड लाइक दिस, राइट. सो इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है, हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. सेकंड इज what is energy stored in case of parallel combination.
of capacitors, right? So see, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, we know potential remains constant, ठीक है. So the total energy is equal to what? Energy in first capacitor plus energy in second capacitor plus energy in third capacitor and so on. So U total energy would be given by, this is half, since V is constant, right? So C1 V square plus half C2 V square plus half C3 V square and so on, since V is constant, right? So these are the expressions that we can, we can use to calculate what? Electrical potential energy in case of series combination or in case of parallel combination. इसको लिख लो इसको. See, energy density in a capacitor. So if you have a capacitor, okay, let's make capacitor here. This is capacitor. Let this plate is positive, it has got plus Q, minus Q. Okay, so this plate has got positive charge over it, this one has a negative. So there is electric field, right? Electric field here. So this is electric field, and in this electric field energy is stored, right? So what is energy density per unit volume? If you want to find out the energy density, that is total energy per unit volume. So energy density का definition लिख लो पहले, है ना. So energy density, this thing is what? It is energy or electrical energy per unit volume of the capacitor. Density है, तो डेंसिटी को आपको आइडिया है डेंसिटी का है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है. वैसे एनर्जी डेंसिटी व्हाट इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है. सो लेट अस राइट इट, लेट मी यूज दिस कलर. सो U is equal to what? It is total potential energy, this is small u, right, upon volume, that is capital U upon V. V stands for volume, U stands for total electrical potential energy in this space, right? तो इसका वॉल्यूम भी हमें चाहिए, तो कुछ हमें एरिया चाहिए होगा प्लेट्स का. सो लेट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D एंड एरिया ऑफ द प्लेट्स इज A. सो दिस इज लाइक दिस, राइट, ऐसा कुछ इसका एरिया होगा. सो प्लेट इज लाइक दिस, ठीक है. इट्स एरिया इज A. Now see, so now U is what? It is half CV square. ये हमने देखा है अभी, half into C. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है मान लीजिए, ठीक है. इसका कैपेसिटेंस इज सपोज C. So what is the electrical potential energy inside this electric field? It is what? Half CV square. And volume is what? Volume is C, this area into this D, right? इसको थोड़ा अरेंज करते हैं हम टर्म्स को. So you get what? Half into C into V square upon AD. And in case of a parallel plate capacitor, the capacitance is given by A epsilon over D, right? If you recall that formula that we had derived. So C can be written as A epsilon upon D, and then you have this one as V square upon AD. So cancel out A. So you get what? Half. This is epsilon. And this is V square upon D into D, D square, right? So V upon D whole square. And you know V is equal to what? ED, right? So E can be written as V upon D from here. So put it and you get what? Small u. Small u is what? Energy density, right? Small u क्या है? Energy density है. Energy density is small u. So this u, for u you get expression that is half epsilon, and V upon D is what? E square, this E, right? So one important thing that you should note here is what? Right, note the energy density, U is directly proportional to square of electric field, okay, in between the plates of the capacitor, that you can write. So this thing you should take a note of. So if you have done it,
maybe we shall proceed ahead. Okay, so let's go ahead. So I'll upload it on YouTube, you can note it from there. Now see, the next topic we'll see is the redistribution of charges. So this is like redistribution of charges. Charges का redistribution कैसे होता है? Suppose we have two capacitors. This is C1 and then we have another C2. ठीक है, इसको मान लीजिए आपने चार्ज दिया Q1 और इसको आपने चार्ज दिया Q2 और उसके बाद आपने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट्स को एक साथ और ये नेगेटिव, से दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. तो ये दिस वन इज इनिशियल अरेंजमेंट, दिस इज योर इनिशियल अरेंजमेंट एंड फॉर फाइनल अरेंजमेंट, ठीक है, फाइनली आपने क्या किया, ये प्लस जो है उनको आपने एक साथ ऐड कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और ये नेगेटिव वाले को भी आपने एक साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है. सो इट्स लाइक दिस. नाउ सी द चार्जेस दे विल रीडिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, चार्जेस जो है Q1 Q2 ये भी क्या होगा, उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन जाएगा, ठीक है, इनके ऊपर, है ना. इनका कैपेसिटेंस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कैपेसिटेंस वैसे ही रहेगा क्योंकि जो कैपेसिटेंस है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, है ना, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट. सो C1 एंड C2 विल नॉट चेंज बट द चार्जेस विल चेंज, ठीक है, चार्जेस इनके ऊपर इंडिविजुअली तो चेंज होगा, है ना. यदि एक Q1 है और ये Q2 है तो यहाँ पे आपका Q1 डैश और यहाँ पे आपका Q2 डैश, ऐसा कुछ आ सकता है ना, इनफैक्ट आएगा ही, ठीक है, क्योंकि चार्जेस क्या करेंगे, अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना. बट वन थिंग दैट यू हैव टू टेक नोट ऑफ एंड दैट इज व्हाट, पोटेंशियल जो इसका होगा, दिस वन इज सपोज एट पोटेंशियल V1 होगा, यदि Q1 C1 है तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, V1 होगा, राइट. तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है आपका, ये V1 पे है और ये किस पोटेंशियल पे है, V2 पे है, ठीक है. जब आपने इनको कनेक्ट किया तो क्या होगा, इसके अक्रॉस एक कॉमन पोटेंशियल जाएगा, है ना, वो कॉमन पोटेंशियल क्या रहेगा, V होगा, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल में है, ठीक है. सो व्हाट हैपेंस, सी द चार्जेस, द इनिशियल अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू फाइनल अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज. क्यों, बिकॉज यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम. ये कॉन्सेप्ट को पता है ना, कि आइसोलेटेड सिस्टम है तो क्या होगा, वहाँ पे चार्जेस कंजर्व रहते हैं, ठीक है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश. सेपरेटली भी अलग हो सकते हैं, ठीक है, Q1 डैश Q2 डैश अलग अलग हो सकता है, बट देयर सम वुड बी इक्वल टू व्हाट, Q1 प्लस Q2. ओके, नाउ अब यहाँ से देखते हैं, ठीक है, Q1 क्या है, देखो Q1 इज इक्वल टू C1 V1. सो दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज इट ऑलवेज, ठीक है, रिमेंबर इट. सो Q1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका C1 V1 और Q2 क्या हो जाएगा, C2 V2, राइट, C2 V2. Q1 डैश क्या हो जाएगा, Q1 डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 इंटू यहाँ का पोटेंशियल, सिंस इट इज पैरेलल सो पोटेंशियल इज V ओनली, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, V है, सो इट इज लाइक C1 V और Q2 डैश भी क्या रहेगा, C2 V. सो फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड आउट द कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, इन दोनों के बीच, इन दोनों पे क्या है, कॉमन पोटेंशियल V, है ना. सो यू गेट व्हाट, C1 प्लस C2 times V is equal to, this is C1 V1 plus C2 V2, and finally you will get what, V is equal to C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2, and this is the common potential, okay, of these two capacitors, ठीक है. So maybe you can note this thing, and finally see, now let us see ये क्या है, Q1 क्या था, Q2 क्या था, Q1 डैश क्या हो गया, Q2 डैश क्या हो गया, ठीक है. सो Q1 डैश, ठीक है, क्या है ये, C1 V है, C1 V है, राइट, C1 V, एंड Q2 डैश क्या है, देखो जरा एक बार, दिस इज C2 V. इफ यू डिवाइड द टू, सो फ्रॉम हियर यू गेट व्हाट, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2. तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से भी निकल के आती है, क्या है, जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो उनका जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस टाइप से होगा, वो प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटेंस होगा, ठीक है, जो कैपेसिटर्स हैं उनके कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल होगा. तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड नोट डाउन, लेट मी राइट इट हियर, लिखिए, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट इन रेशियो ऑफ
कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स, लाइक दिस यू कैन नोट, ठीक है। तो ये चार्जेस का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है Q1 डैश Q2 डैश का, वो किसके प्रोपोर्शनल है, C1 और C2 के है, ठीक है। सो नोट इट डाउन, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, ओके। अबाउट द कॉमन पोटेंशियल, क्या है, दिस इज कॉमन पोटेंशियल है ना, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉमन पोटेंशियल। एक एक्सप्रेशन ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा एक्सप्रेशन ये हो गया आपका, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज अबाउट द रेशियो ऑफ चार्जेस आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट विल डिस्कस, एंड दैट विल बी अबाउट द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जब भी चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, कुछ तो लॉस होगा, है ना, तो हम उसकी बात करते हैं। सो राइट इट, लॉस ऑफ एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यू कैन राइट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, EPE स्टैंड्स फॉर व्हाट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन redistribution or sharing of charges, ठीक है। सो दिस बी योर थर्ड पॉइंट, ठीक है, जो कि हम redistribution ऑफ चार्जेस में पढ़ रहे हैं, है ना। सो इनिशियल जो सेट था हमारा, रिकॉल, वो कुछ ऐसा था, ठीक है। चार्ज वॉज लाइक Q1 C1 एंड पोटेंशियल वॉज V1। तो यहाँ पे U1 क्या हो जाएगा बताओ, इट वुड बी हाफ C1 V1 स्क्वायर, राइट, ठीक है। ये पहले के लिए, और दूसरा कैसे था, इस तरीके से था, दिस वॉज लाइक प्लस Q2 C2 एंड V2। तो यहाँ पे P क्या हो जाएगा, हाफ C2 इंटू V2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी डिराइव करा हम लोगों ने, है ना, यू नो इट। सो दिस वॉज इनिशियली, राइट, इनिशियल जो कॉन्फ़िगरेशन था उसमें ऐसा था। और फाइनली क्या हो गया बताओ, फाइनली योर सिस्टम इज लाइक दिस, यहाँ पे क्या है आपका, Q1 डैश है, Q2 डैश है, C1 ये C2 है, पोटेंशियल इज V, दैट इज कॉमन पोटेंशियल, राइट। तो इसका जो U होगा U फाइनल, ठीक है, दैट वुड बी व्हाट, हाफ, और आपको पता है पैरेलल में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है क्या होता है, C1 प्लस C2। और फिर V की बात करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाफ CV स्क्वायर, राइट। और V क्या है यहाँ पे, V हमने देखा है कॉमन पोटेंशियल भी निकला था, क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट, एंड स्क्वायर ऑफ दिस पैरामीटर, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस वन इज इनिशियल। सो इनिशियली the total energy initial is what, U initial is sum of these two, right. So half, this is C1 V1 square plus C2 V2 square, and finally it is this. So if you try to find out the difference of initial and final potential energy, that is delta U, you get a positive quantity always, you get what, a positive quantity, you can try by yourself, ठीक है। इसको आप सम कर लो, क्या हो जाएगा, दिस वुड बी लाइक हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2, एंड देन यू हैव व्हाट, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। सो इफ यू सॉल्व इट you get what, this is like half, and then you have C1 C2 upon C1 plus C2, and then you have difference of the two potentials, and that is V1 minus V2 and whole square. So see, this quantity is positive, this is a whole square, it is also positive quantity, and therefore what you get is a positive quantity, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ UI is greater than UF, यानी इनिशियल P ज़्यादा थी, बाद में P कम हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जब आपने इसको रीडिस्ट्रीब्यूट चार्जेस का हुआ, ठीक है, आपने इसको कनेक्ट किया दो कैपेसिटर्स को, और चार्जेस का क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। तो क्या होता है कि जो कंडक्टिंग वायर्स हैं, राइट, इनके अक्रॉस क्या होगा, कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होगा इन फॉर्म ऑफ हीट, है ना। सब हीट विल गेट डिसिपेटेड
through these conducting wires, and therefore the final amount of energy is always lesser than the total amount of initial energy, है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट में यहाँ पे नोट कर देता हूँ। सो नोट इट। सो आफ्टर दिस, इसके नीचे आपको लिखना चाहिए क्या, दिस shows that what this positive quantity, right, this thing, this shows that whenever charged conductors, okay, so charged conductors or capacitors, whatever, ठीक है, तो whenever they are connected such that they acquire a common potential. So see, in this case we had connected two capacitors, they could be conductors also, okay, कंडक्टर होंगे तभी, कैपेसिटर्स होंगे तभी, क्या मिलेगा आपको, कॉमन पोटेंशियल मिलेगा, राइट। सो ऐसा जब भी होगा, ठीक है, देयर इज ऑलवेज some loss of potential energy. In what form? In form of heat dissipated through conducting wires. So exactly this I told you. So this actually you can write down. Okay, so now we'll study about dielectrics, ठीक है। कैपेसिटर्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है डाइलेक्ट्रिक्स का, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक्स देखते हैं हम लोग। डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या है पहले, ठीक है। तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं दे आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। तो आमतौर पे जो इंसुलेटर्स होता है उनको ही आप बोलते हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक्स। थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। बट हियर फर्स्ट विल सिंपली से an insulating material is called a dielectric। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, राइट। इलेक्ट्रिक करंट तो ये कंडक्ट नहीं कर सकता है ना, बट व्हाट इट कैन डू दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। सो राइट, इट कैंट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल जो होगा, है ना, दिस इंसुलेटिंग मटेरियल इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो यू राइट व्हाट, इट कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सी, बट it can transmit electric field, right, but it can transmit electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका बिहेवियर ऐसा होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसमिट कर सकेगा, है ना। तो उसके बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं। सो लेट मी राइट टाइप्स ऑफ सम थियरी, ठीक है, जस्ट क्विकली राइट इट डाउन। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। सो two types are reported, one is polar, other is non-polar, right। So let me write it, polar and non-polar dielectric। So which one is called polar and which one is called non-polar, इसके बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। So first polar डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, छोटे डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, रिवाइज करने में आसानी होगी आपको बाद में, है ना। तो व्हेनेवर पॉजिटिव, सो सी इन अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, किसी मटेरियल में क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, ठीक है। तो यदि उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कहिए, ठीक है, जब वो कोइंसाइड कर रहा होगा, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर है। और जब वो कोइंसाइड नहीं करेगा, यानी यहाँ पे दो डिफरेंट पोल्स बनेंगे, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो पोलर है। सो राइट, व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, इंसुलेटिंग है ना, इंसुलेटिंग मटेरियल और मॉलिक्यूल डू नॉट कोइंसाइड, ठीक है, डू नॉट कोइंसाइड
एट देयर सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। एंड देयरफॉर दे डू व्हाट, दे फॉर्म टू डिफरेंट पोल्स, दे फॉर्म टू पोल्स, क्योंकि भाई पॉजिटिव है, ये मान लो, ये मैं दिखाता हूँ, मान लो ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये दोनों कोइंसाइड नहीं किया, तो क्या कर गया फिर, ये अलग अलग हो गया, तो उस टाइम क्या हो गया, यहाँ पे एक डाइपोल बन गया है ना, वहाँ पे टू डिफरेंट पोल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो उनका नेगेटिव टू पॉजिटिव एक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, फिर उसमें नहीं हो जाएगा, म्यू वहाँ पर क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया यहाँ पे, है ना। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे वुड बी कॉल्ड, और ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो मटेरियल होगा दैट वुड बी कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो इसका एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में आपका HCl है, H2O है, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक। लिख लो इसे फटाफट, जो लोग मेरे साथ लिख रहे हैं वे लोग फटाफट लिखते चलो। चलो फिर, देन इज व्हाट, नॉन पोलर, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो आपको पोलर पता है तो आप नॉन पोलर पे आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड व्हाट वुड बी दैट, व्हेन centers of positive and negative charges do coincide at their center of mass. So such, okay, so when center of positive and negative charges do coincide their center of mass, such molecules are non-polar dielectrics. So example is what, all these dimolecules like H2, N2, O2 etc. So they are all what, they are non-polar. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ कोइंसाइड कर जाता है, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ओके फाइन, सो नाउ we'll study what happens to these dielectrics when they are placed in electric field, in external electric field, ठीक है। क्योंकि हमने कहा अभी कि जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं दे आर इंसुलेटर्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं ना। एंड दे कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट तो वे कंडक्ट कर नहीं सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ चार्जेस ओनली ना, तो जो चार्जेस होंगे वे इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आने पे वे मूव करेंगे, ठीक है, और रोटेट करेंगे, है ना। सो डिपेंडिंग ऑन दैट वी आर अबाउट टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो राइट, डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो दिस टॉपिक वी आर अबाउट टू स्टडी and this would be called polarization. So whenever you are putting a dielectric in external electric field, then dielectric will get what, it will get polarized, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे नॉन पोलर का, है ना, नॉन पोलर, ये सिंपल है, पहले इसकी बात करेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग पोलर वाले का, ठीक है। तो पहले नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम रखते हैं कहाँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। सो केस नंबर 1, केस 1, and what is that, polarization of non-polar dielectric in external field, right, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तब क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड हो जाएगा फिर क्या होगा, है ना। ओके, एनीवे, so because I need to make some horizontal lines and vertical lines, I need to make some rectangles. ये मान लो है आपका पहला केस, इसमें नॉन पोलर मटेरियल है, ये मान लो आपका मॉलिक्यूल है नॉन पोलर मटेरियल का, है ना, कुछ ऐसा है भाई, ठीक है, इट्स सर्कुलर, इसका पॉजिटिव नेगेटिव इट्स कोइंसाइडिंग, ठीक है। ओके, बिकॉज इट इज व्हाट, इट इज नॉन पोलर, है ना। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है अभी, तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। नेट डाइपोल मोमेंट की हम बात करें, सबका अपना अपना जीरो है, सो नेट डाइपोल मोमेंट इज व्हाट, इट इज जीरो, ठीक है।
तो यू कैन राइट हियर in absence of external electric field, center of mass of positive and negative charges coincide, and therefore net dipole moment is what? It is zero. Moment is zero. Okay, क्योंकि coincide कर रहे हैं, so there is no distance between. क्या हो गया? Is somebody saying something? ठीक है, तो जस्ट इन केस यू आर इन डाउट्स टेल मी, ठीक है, वहाँ पे मुझे रोक देना है ना, तो वहाँ पे रुक हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको. सो नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो, क्योंकि वहाँ पे चार्जेस के बीच में कोई आर्म लेंथ नहीं है, ठीक है, कोई एल नहीं है ना, बिकॉज यू नो डाइपोल मोमेंट इज व्हाट? इट इज लाइक 2a/q, राइट, द मैग्नीट्यूड लाइक दिस. नाउ सिंस a इज जीरो, ठीक है, a जीरो है तो m क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना, फॉर ऑल दिस मॉलिक्यूल्स, एंड देयरफॉर नेट डाइपोल मोमेंट वुड बी जीरो. ठीक है, तो अभी तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा ही नहीं है अभी, है ना, अभी तो वैसे ही देख रहे थे कि नॉर्मली ऐसे ही पड़ा हुआ है कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो उसमें क्या होगा, ठीक है, उसमें डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसको लिख लो. दूसरी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? उसको प्लेस कर रहे हैं इन सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो व्हेन this non-polar dielectric is placed in external electric field, see what happens then. ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये मटेरियल था ऐसा, है ना, और आपने क्या लगा दिया? इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अभी. दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, पूरा इस तरीके से होगा. ठीक है, तो अभी क्या होगा? अब देखिए, ये जो इसका मॉलिक्यूल है ना, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग मूव कर जाएगा, राइट, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. तो आपको कैसे मिलेगा? ये डिफॉर्म हो जाएगा, इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, और ऐसा ही क्या होगा? सबके साथ होगा, राइट, प्लस माइनस, यहाँ भी आप बना लीजिए. सो दिस थिंग विल हैपन, ठीक है. ऐसा कब होगा? जब आपने एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिया इन सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा, ऐसा होते ही क्या होगा? देखो, नाउ सी फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, दिस विल सॉर्ट ऑफ कैंसिल आउट, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव. तो इस सरफेस पे क्या होगा? ठीक है, इसको मैं दोबारा बना ले रहा हूँ, है ना, इसको, फिर ये कैसा हो जाएगा? इसको दोबारा बना ले रहा हूँ. ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसके अंदर आपका दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये यूनिफॉर्म है ना इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे इस सरफेस पे आपको नेगेटिव चार्जेस दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, ये देखो, ये नेगेटिव है यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस जाएंगे, राइट, जिसकी वजह से क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अंदर इंड्यूस जाएगा, ठीक है, कैसे? पॉजिटिव से नेगेटिव. सो दिस इज another electric field that would be set up inside the dielectric. ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है. और बाहर क्या था आपका? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना, उसको आप यहाँ पे कुछ नाम दे दो, मान लो E नॉट है, तो बाहर क्या है आपका? E नॉट है, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. और अंदर क्या हो गया? अभी आपका एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, ठीक है, इंड्यूस हो गया, दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड EI, है ना. इसकी वजह से क्या होगा? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इनसाइड दिस डाइलेक्ट्रिक, दैट वुड गेट रेड्यूस्ड, वो कम हो जाएगा, है ना. तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E, वो क्या हो जाएगा अभी? E नॉट माइनस EI, राइट, क्योंकि EI अपोजिट है E नॉट के. इसको लिख लो, यहाँ पे लिखो, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड
in an external electric field, positive and negative. See, this one is positive and negative. ठीक है, so these will get displaced. Okay, so these centers will get displaced and therefore you will get what? Polarization. फिर क्या मिल जाएगा आपको? Polarization. So this will cause, so write causing what? Causing polarization. And therefore you will have what? Net dipole moment, right? So there would be net dipole moment, right? अब यहाँ पे क्या है देखो, इस वाले केस में इसको भी लिख लो यहाँ पे. What happens due to polarization, an electric field is induced. इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको EI लिख लो, ठीक है, EI is induced inside the dielectric, which would be what? Opposite, which is opposite to applied electric field E naught. Therefore net electric field inside dielectric is reduced, right? Is reduced, and that is what? That is equal to, so that is E, right? So net electric field is what? It is E. So this gets reduced and this is equal to what? E naught minus EI. इसको लिख लीजिए फटाफट. चलो, आई होप हो गया होगा. ठीक है, आगे देखते हैं फिर. सो राइट पोलराइजेशन ऑफ, नेक्स्ट पोलराइजेशन ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, नॉन पोलर हो गया अभी. अ पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं. ठीक है, सो सेकंड इज दिस केस, है ना. इसमें पहले देखते हैं जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही नहीं लगा हुआ है तब क्या होता है. ठीक है, तो ये मान लो आपका है ना मटेरियल है जिसमें मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये पोलर है तो मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे होंगे. ठीक है, रिमेंबर देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स, दे डू नॉट कोइंसाइड. ठीक है, सो दिस लाइक दिस. तो ये मान लो आपका पॉजिटिव यहाँ है तो नेगेटिव यहाँ है ना. इसका नेगेटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है. ठीक है, ये इसका पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, है ना. ये सिस्टम जो इसकी एनर्जी है वो भी कम होगी, तो कुछ इस तरीके से अपने आप को इन्होंने मेंटेन कर रखा होगा. ठीक है, सो लाइक दैट. ठीक है, सो दिस वुड बी लाइक दिस. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा. तो इसका डाइपोल कैसे है? नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर है. ठीक है, इधर रेड पेन. इसका डाइपोल कैसे है? नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे है. इसका कैसे है? लाइक दिस. इसका कैसे है? यूँ है ना. नेगेटिव टू पॉजिटिव कुछ ऐसा है. ठीक है, दिस वन लाइक दिस. सबका डाइपोल मोमेंट जो है उसका ओरिएंटेशन डिफरेंट है. ठीक है, रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज देयर इन ईच ऑफ द मॉलिक्यूल्स. तो आप लिखें यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट इज स्टिल जीरो. व्हाट इज जीरो? ठीक है, इंडिविजुअली क्या है उनका डाइपोल मोमेंट है ना, बट नेट डाइपोल मोमेंट जीरो. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे लिखो इंडिविजुअली each molecule
each molecule has got some dipole moment, but they are all randomly oriented, and therefore their net resultant is 0. So net resultant is what? It is 0. नेट रिजल्टेंट ऑफ डायपोल मोमेंट इज 0. वाई? क्योंकि इंडिविजुअल तो इनका है अपना, देखो सबका अपना अपना डायपोल मोमेंट है, लेकिन सबका ये सारे वेक्टर्स हैं, राइट, सारे वेक्टर्स हैं. इनको आप जब प्लॉट करोगे फाइनली ना यहाँ पे, ठीक है, तो इसका जैसे इधर है, ठीक है, एक डायपोल मोमेंट इधर है, दूसरा आपका इधर है, ये आपका नीचे की साइड में है, तो इसका कुछ ये वाला देखो ये इस साइड में है, ठीक है. सो दे विल ऑल कैंसिल आउट, इनका नेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो इंडिविजुअली ऑल दीज मॉलिक्यूल्स दे विल हैव सम डायपोल मोमेंट, बट overall when you talk of the net dipole moment due to all these molecules that would be 0. अभी इस तरीके से अलाइन करेंगे आप अपने आप को कि उनका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? सिस्टम का मिनिमाइज्ड रहेगा, ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इफ दिस मेटेरियल इज प्लेस्ड इन सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है फिर. तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं. यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल, ठीक है. इसको E0 कह लेते हैं हम लोग, ठीक है. E0 है सपोज, और यहाँ पे ये हो गया आपका, मैंने 3, 3, 6, 3, 9 मैंने देखा है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को, तो ऐसा बना लीजिए इनका, ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इसमें लगा जो सारे मॉलिक्यूल्स थे वे अलाइन कर जाएंगे अपने आप को, ठीक है. डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है, वो अलाइन कर जाएगा अलॉन्ग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. तो कैसे? पॉजिटिव सारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, है, और नेगेटिव क्या होगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर मूव कर जाएगा, ठीक है. एग्जैक्टली आपको वैसा ही मिल रहा है जैसा कि नॉन पोलर के केस में मिला था, ठीक है. तो फाइनली क्या हो जाएगा फिर? तो फाइनली फिर ऐसा हो जाएगा, यू कैन गेस कि फाइनली क्या होगा, ठीक है. इस सरफेस पे क्या हो जाएगा? सारा नेगेटिव हो जाएगा, इस सरफेस पे पॉजिटिव हो जाएगा. ये था आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बन जाएगा आपका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जो कि इंड्यूस हो गया अभी, ठीक है, ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड चार्जेस, है ना. एंड देयरफॉर जो ई नेट मिलेगा आपको, दैट वुड बी व्हाट? E0 माइनस EI, दैट इज रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. ये ई क्या कहेंगे हम इसको? ये रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है. इसके बारे में लिख लो यहाँ पे. let me write it. On application of external electric field E0, the molecules write the charges, the positive and negative charges align themselves, okay, in direction of electric field, in direction of E0, creating नेट डायपोल मोमेंट. यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट आपको मिल जाएगा अभी, ठीक है. अभी क्या हो गया? आपका नेट डायपोल मोमेंट हो गया, है ना. ये नेगेटिव यहाँ पे हो गया, ये पॉजिटिव यहाँ पे हो गया, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो आपको नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं मिल रहा था, ठीक है. और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ड्यू टू दिस पोलराइजेशन, राइट, ड्यू टू दिस पोलराइजेशन an induced or an induced, just a minute, okay, so an electric field is induced inside the dielectric, hence decreasing the
the net electric field, which is what? E is equal to E naught minus EI. ठीक है, so this thing you may note down, all these points you should note down. चलो इसको एक बार और देख लेते हैं, ठीक है. सो कैपेसिटर के बीच में देखेंगे इस डाइलेक्ट्रिक को तब क्या होता है ना, कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं. देखो डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इनसाइड अ कैपेसिटर. एक कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, सो इनसाइड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है ना. तो इसका मतलब क्या है? यदि मैं ऐसा बोलूं कि भाई ये आपका एक प्लेट है, दूसरा प्लेट है ना, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस करना है, ठीक है. तो डाइलेक्ट्रिक में ये ऐसे इस कलर लेता हूँ, ये डाइलेक्ट्रिक है मान लो. से द थिकनेस ऑफ दिस इज लाइक T, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज T एंड एरिया इज A. ठीक है, सो दिस इज द डाइलेक्ट्रिक है ना. इट कुड बी माइका शीट और एनीथिंग. ओके, नाउ सी, इसका मतलब यही है जो हमने पहले डिस्कस कर रखा है. यहाँ पे ये जो प्लेट्स हैं ये क्या करेंगे, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे है ना. ये क्या देंगे आपको? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो हमने पहले अभी डिस्क्राइब कर रखा था इसके पहले, ठीक है. तो उस डिस्कशन में क्या था, बस हमने कैपेसिटर नहीं कहा था है ना, लेकिन वहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड तो था ही, ठीक है. तो यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड को मान लो मैं कह दूँ कि ई नॉट है. जो एक्सटर्नल फील्ड है क्या है, वो ई नॉट है. तो क्या होगा, तुरंत अंदर क्या हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा, राइट है ना. तो कैसे हो जाएगा, सी डायग्राम क्लियर. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, ठीक है, इंड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको यहाँ पे एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, विच इज व्हाट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो यहाँ पे जो रिड्यूस्ड फील्ड होगा, ठीक है, सो यू कैन राइट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside dielectric which is reduced now, right, is given by E, and E is equal to what? E is equal to E naught minus EI. So you can see the magnitude of electric field is reduced, right? Okay, so now there are some terms that we'll discuss one by one. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की. व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? सो फर्स्ट टर्म इज, कुछ थ्योरी है देख लो इसको है ना, और यहाँ से न्यूमेरिकल से बनते हैं फिर इन टर्म्स को यूज करते हुए. ठीक है, सो इट इज रेशियो ऑफ व्हाट, इट इज रेशियो ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यू हैव अप्लाइड. ठीक है, दैट इज ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड divided by, or since we are saying ratio, so it is ratio of this electric field and that of the reduced electric field. ठीक है, so you can write here, let me use the red pen, it is ratio of applied electric field which is E naught to the reduced electric field which is what, E. Right, so it is given by a constant K. You can write it. It is given by constant K, and since it is a constant, it has no unit, no dimension. ठीक है, so you can further write it has no unit, no dimension. Now see, so let me write this expression. K would be equal to what, E naught upon E, and very easily you can verify this C greater than what, 1, right. So E naught upon E, यदि डायलेक्ट्रिक यहाँ पे होगा कोई तो डेफिनेटली क्या होगा, ये 1 से बड़ा ही रहेगा. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग E की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट E इज इक्वल टू व्हाट, E इज इक्वल टू E naught upon K. तो आपको जो E इसके अंदर जो नेट E मिला है, विच इज E इज इक्वल टू व्हाट, E naught माइनस EI,
वो आपको सीधे सीधे मिल जाता है, वो क्या हो जाएगा ई नॉट अपॉन के, ठीक है। तो आप यदि इसको इसमें पुट करना चाहो तो क्या हो जाएगा बताओ, लेट दिस इज इक्वेशन 1, लेट दिस इज इक्वेशन, सो दिस इज योर रिलेशनशिप, ठीक है, दिस इज 2, सो पुटिंग सेकेंड इन 1, ऐसे पुट कर लो वहाँ पे, क्या हो जाएगा ई नॉट अपॉन के इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई। सो फ्रॉम हियर यू कैन गेट एक्सप्रेशन फॉर ई आई, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा, एंड दैट वुड बी व्हाट, ई आई क्या हो जाएगा ई नॉट माइनस ई नॉट अपॉन के, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के। तो कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अब वो क्या दिया होता है, जो डाइलेक्ट्रिक रहेगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया होगा और वो पूरी तरीके से भर रहा होगा कैपेसिटर को, तो वहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो राइट इट डाउन, इसका एक और नाम होता है, लिख लो यहाँ पे, ठीक है, लेट मी यूज दिस ब्लैक पेन, इट इज रिलेटिव परमिटिविटी। ये हमने चैप्टर 1 में भी देखा था, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ई आर, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी, बोथ दे आर सेम, फाइन। सो नेक्स्ट डेफिनेशन वुड बी पोलराइजेशन डेंसिटी, ठीक है, पोलराइजेशन डेंसिटी, इसका डेफिनेशन लिख लो पहले, ठीक है। ये क्या होता है, अच्छा देखो पहले समझो यहाँ से क्या होता है, ठीक है। अभी क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है ना, तो इंड्यूस्ड चार्ज मान लो यहाँ पे क्यू आई है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे डायपोल मोमेंट मिलेगा आपको, नेट डायपोल मोमेंट मिलेगा इनसाइड वो डाइलेक्ट्रिक। तो नेट डायपोल मोमेंट कितना मिला आपको पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन, बिकॉज इज डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, समथिंग अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पे पोलराइजेशन डेंसिटी क्या हो जाएगा, इट वुड बी लाइक डायपोल मोमेंट। सो इसको लिख लो पहले, है ना, इट इज रेशियो ऑफ net dipole moment induced and volume of, रेशियो है यहाँ पे 2 लिख लो, ठीक है, या ऐसे लिख लो, इट इज, ये रेशियो को भी हटा दो और आसान लिखते हैं इसको, ठीक है, डेफिनेशन को, है ना, ऐसे लिखो, इट इज नेट डायपोल मोमेंट, इट इज नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, साफ साफ ऐसे एक लाइन में जाएगा फिर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, और छोटे में हो जाएगा डेफिनेशन। सो नाउ लेट मी राइट सम एक्सप्रेशन फॉर इट। सो नेट, सो पोलराइजेशन डेंसिटी है ना, उसको हम लोग पी से दिखाते हैं, ठीक है। सो पोलराइजेशन डेंसिटी P is given by, नाउ डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आपने पढ़ा है डाइपोल मोमेंट के बारे में, m is given as 2a into q, राइट। अच्छा, ये डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस एंड दिस इज चार्ज ऑन वन ऑफ द चार्जेस, राइट। तो यहाँ पे ये क्यू आई प्लस है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस क्यू आई होगा, इंड्यूस चार्ज है, ठीक है। इनके बीच का जो लेंथ है वो क्या है, टी है, सी, थिकनेस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक इज टी। तो आप क्या लिखोगे इसको, फिर आप लिखोगे व्हाट, क्यू आई, ये हो गया आपका चार्ज, और ये जो लेंथ है यहाँ पे टी है तो आप टी लिखोगे, ये पूरा क्या हो गया, आप डायपोल मोमेंट हो गया, राइट। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम मान लीजिए इसका एरिया, यदि इस प्लेट का एरिया ए है और जो आपका डाइलेक्ट्रिक है उसका भी एरिया क्या है, ए है, और थिकनेस टी है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, ए इंटू टी, राइट। सो दिस टी विल कैंसिल आउट एंड यू विल गेट व्हाट, क्यू आई अपॉन ए, और ये आपका क्या है, क्यू अपॉन ए क्या होता है, ये चार्ज डेंसिटी होता है, राइट, ये सिग्मा आई होता है, इफ यू रिकॉल, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी इज व्हाट, इट इज सिग्मा आई, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द डाइलेक्ट्रिक। So polarization density is what?
इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसको लिख लीजिए फटाफट। चलो आई होप हो गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टर्म इज थर्ड टर्म इज व्हाट? इट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक susceptibility. So this sky is used to represent it. ठीक है, ये क्या होता है? Definition, write it. It is ratio of polarization, जो हमने पीछे देखा था। ठीक है, polarization to epsilon times. Epsilon क्या है आपका? ये this is permittivity of free space, right? So epsilon times reduced electric field in dielectric। ठीक है, so interestingly पोलराइजेशन क्या होता है आपका? P होता है, और reduced इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E होता है, और ये क्या लिखा है? एप्सिलॉन टाइम्स। ठीक है, so this is epsilon times and this is what? This is electric susceptibility, electric ठीक है, इसके लिए ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन, राइट। तो यहाँ से पोलराइजेशन क्या हो जाएगा? इसके लिए आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज काई। ये काई हो गया, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज ई। तो पोलराइजेशन के लिए आपको एक नया एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? रिलेशनशिप बिटवीन relationship between these two constants. एक constant में पढ़ा क्या? Dielectric constant, right? K, capital K. So between dielectric constant capital K and other is this parameter, electric susceptibility, which is what? This is chi। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप निकालिए। तो हम कैसे करेंगे स्टार्ट? ठीक है, यहाँ से करो। जो रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला पैरामीटर, दिस इज इक्वल टू व्हाट? इट इज E नॉट माइनस EI। ठीक है, ये आपको पता है ना? फिर हम क्या करेंगे? EI को हम लिख सकते हैं क्या? E नॉट माइनस EI। रिकॉल E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, राइट? तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको सिग्मा I। ये क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया, दिस इज पोलराइजेशन अपॉन एप्सिलॉन। अभी देखा हम लोगों ने, ये क्या है? पोलराइजेशन के बराबर है। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज E नॉट माइनस पोलराइजेशन अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे आप? राइट, E इक्वल टू E नॉट माइनस P के एक्सप्रेशन में आपने देखा था क्या था? काई एप्सिलॉन इनटू E अपॉन ये हो गया आपका नीचे एप्सिलॉन, राइट? सो दिस एप्सिलॉन विल कैंसिल आउट। ठीक है, तो क्या मिल गया आपको यहाँ से? E इक्वल टू E नॉट माइनस काई इनटू E। आप इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा फिर? सो लेट मी राइट हियर, यू गेट E प्लस काई इनटू E इज इक्वल टू E नॉट, राइट? आप कॉमन ले लो और इसी को नीचे ले आओ, हो जाएगा 1 प्लस काई इज इक्वल टू E नॉट अपॉन E। एंड रिकॉल E नॉट अपॉन E क्या? ये डायरेक्टली कांस्टेंट क्या होता है, राइट? तो आपको यहाँ से एक्सप्रेशन मिल गया, व्हाट इज दैट? 1 प्लस काई इज इक्वल टू डायरेक्टली कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इनमें से कोई भी एक पता होगा तो दूसरा आप निकाल सकते हो। सो डायरेक्टली कांस्टेंट इज 1 ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, and then I'll tell you one more definition। ठीक है, और आज के लेक्चर में खत्म करूँगा, and that is fifth one, dielectric strength क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अभी हमने देखा किसी डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, ठीक है, कोई डाइलेक्ट्रिक है ना, इसके ऊपर जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो क्या होता है? पोलराइज हो जाता है। ठीक है, इसका कोई मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल देखता हूँ मैं, कोई भी एक मॉलिक्यूल देखता हूँ मैं, क्या होगा? पोलराइज होगा, है ना? पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे। आप इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो क्या होगा?
ये स्ट्रेच होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, एक टाइम आएगा जब ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो वह मोमेंट, ठीक है, या वह इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच दिस मटेरियल, दिस मॉलिक्यूल ब्रेक्स, है ना, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक। वो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बर्दाश्त कर सकता है बिना टूटे हुए या टूटने के जस्ट वर्ज पे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मैक्सिमम बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, जहां पे बस टूटने वाला है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सो दैट इज डेफिनेशन, है ना। इट इज मैक्सिमम electric field that a dielectric can withstand. Withstand मतलब बर्दाश्त कर सके, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग डाउन, इज कॉल्ड इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सो ऐसा यूनिट इज व्हाट, इट इज वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, पता है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इट इज व्हाट, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, ठीक है ये। और उसके अलावा प्रैक्टिकली ये हम लोग इसको देखते हैं तो ये इतना मीटर होता है, ये मिलीमीटर में होता है ना, पोटेंशियल का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यदि प्रैक्टिकल यूनिट की बात करना चाहो, प्रैक्टिकल यूनिट, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ देखना है तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, है क्या, किलो वोल्ट में। और ये डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, दैट मिलीमीटर में है ना। सो दिस अगेन इट्स सम पोटेंशियल अपॉन सम लेंथ, ठीक है, some voltage upon some length. So SI unit is volt per meter and parallel unit is kilovolt per millimeter, right? So this is all about the definitions regarding this dielectric.